Hello everyone and welcome to today's vlog. So today's vlog is going to be little informative for all the people who are coming here for masters, and for all of you who don't know me and who just clicked on this video. I'm Kanish Mishra and I make videos related to fitness motivation and also to help students who are coming to pursue their masters in United States of America. This channel is all about fitness and motivation and to help you all who are struggling with their studies and masters. And I'm sure from this channel you guys are going to get good help and some good information so that you can make your career decision wisely. And let's begin with today's vlog. So guys, as I told you that I'll be sharing the stories of the people who have just come in over here, and those stories are not only going to give you inspiration but also going to give you that reality check that is very necessary for all the people who are coming over here to study. क्योंकि ऊपर ऊपर से सबको बहुत कुछ पता होता है और ऊपर ऊपर से सब बहुत लोगों की लाइफ देखते हैं, बट इंटरनली जो लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जो ब्रेकडाउन्स यहाँ पे लोग फेस करते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं लोगों की, वो कैसे बनती हैं, दैट इज़ like much more important and that is necessary to know before you join this path and start your journey. So I have Mihir with me, who is studying MIS in School of Business at Stevens. बहुत time से like we were like planning to shoot a video, but then as I was busy and also he had his semester end, so we were not able to meet. But today we finally got a chance and हम लोग ऐसे ही पार्क में आए थे casually. मैंने बोला कि शाम को थोड़ा सा टाइम है, तो he said like yeah sure, like let's meet up and let's shoot it. And so today I'm just going to ask him some normal questions जो सब लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं, and it's his first semester in Stevens. So firstly, like, give your introduction so that Hello guys, my name is Mihir Joshi and I'm from Mumbai. I'm doing my masters in information systems at Stevens, and as Kanish said, this is my first semester. I just completed my first semester with 4 GPA. yeah. Though it was off campus, the first semester was completely online, but still we experienced a totally different culture or totally different learning culture than India. Yeah, because back in India, Right. he obviously went to Right. campus and stuff, and he stayed away, came from his undergraduate journey, and he started off with like rough patch of little bit, but also like a journey that is different. Like he started with Zoom meetings Right. and stuff. He was able to talk to the professors through Zoom, which was like quite different Right, right. and might be difficult in the beginning, but मतलब शुरू से ऐसे ही हुआ था कि मैं सोच के आया था कि अभी सेमेस्टर चालू हो गया है तो मुझे ऑन कैंपस जॉब मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ आते वी लर्न न्यू थिंग्स एंड वी ट्राई टू अडेप्ट विद दोज थिंग्स पर्टिकुलरली, एंड इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट टू absorb. कंट्रोल योर माइंड ओवर इट. Yeah, ऐसे so generally people still ask me that question कि like मेरे को अभी भी जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और जो लोग डायरेक्टली लिंक्डइन पे या कहीं पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो डायरेक्टली अभी भी यही पूछते हैं कि सो ऑन कैंपस जॉब फर्स्ट सेमेस्टर में कितना ईजी है मिलना एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट पर्टिकुलर डाउट ऑफ द पीपल कि कैसे होता है, लाइक हाउ डिड यू फेस योर थिंग्स इन challenges in your first semester. What were the challenges? फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैड द सेम थिंकिंग, लाइक सेमेस्टर चालू हो जाएगा तो फिर ऑन कैंपस जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऑन कैंपस का प्रोसीजर इज सेम एज फाइनल प्लेसमेंट प्रोसीजर. You have to go through every step. You have to first submit your resume. If your resume gets selected and they think that they feel that yes, this is the right candidate, then they communicate through you with the email. Then they set up an interview, a meeting with you of 10 to 15 minutes, and then they ask you some technical questions, some basic stuff in which you have to crack it. Yeah. And only if you crack it, then only you will get the on-campus job. Yeah, and tell them about the कितने लोग होते हैं? मतलब एक इंटरव्यू मेरा ऐसा था कि मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर उनके बाद उनका ईमेल आया कि बहुत कंपटीशन था, सो हम लोग आपको सिलेक्ट नहीं कर पाए.
वी आर सॉरी फॉर दैट। और एक इंटरव्यू तो ऐसा था कि जिसमें 10-15 लोग थे, सबका इंटरव्यू साथ में हुआ और सबको मतलब एक रैंडम एक जावास्क्रिप्ट का टेस्ट देना पड़ा था। तो फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया। लेकिन वो टेस्ट भी मतलब क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। हम लोग ये सोच के बैठते कि टेस्ट है, आता है अपने को, हो जाएगा क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग को प्रिपेयर करना होता है। हम लोग को ये सोच के जाना पड़ता है कि हमने क्या किया है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। इट वाज लाइक इट इज़ नॉट दैट इजी टू गेट ऑन कैंपस। मैं यही बोलता हूँ, मतलब कोई भी छोटी पोजीशन के लिए देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड इट्स नॉट ओनली इन स्टीवेंस। मेरे फ्रेंड्स बाकी यूनिवर्सिटी में भी थे, उन लोगों ने भी यही सब चीज़ें फेस किया है। एंड दैट्स वाई थ्रू दिस चैनल एंड लाइक बाय टॉकिंग टू ऑल दीज पीपल हु आर जस्ट कमिंग इन, who have this thinking of becoming something or doing something over here, doing something big over here. So मेरे को उनकी mentality इस channel के through दिखानी है कि like how it is done, how it can be done and what is the process that is involved. वो होने के पहले वो process क्या है। अब हो सकता है मैं 3 महीने के बाद मीर से बात कर रहा हूँ तो हो सकता है उसके TA positions, TA जॉब हो या RA जॉब हो, because he is making his efforts, he is applying, he is talking to a lot of people, he is networking, he is asking like मेरे से भी बहुत बार questions पूछता रहता है। He was much more interested in the process because he was ready to be part of it. So that is like that is one thing that clicked कि ठीक है, मैं इससे बाद में जब ये यहाँ पे आएगा तो I'll talk to him and shoot a video with him because I want to know his mindset about this country, about why he came to Stevens. So firstly I want to ask you one question. Why did you choose Stevens and why United States of America? So yeah, I had to do my masters in information systems firstly, and as Stevens is ranked 4th in information system course, so I wanted to pursue masters in Stevens. And secondly, the opportunities after completing your masters, the companies which come into Stevens and take your interviews and और यहाँ पे एक आके पता चला कि यहाँ पे जो मतलब टीचिंग कंसेप्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है हम लोग को, ना कि थियोरेटिकली। तो मतलब एक सब्जेक्ट था मेरा साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इंजीनियरिंग जब मैंने किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मुझे ये सब्जेक्ट मेरा हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगा कि साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल से वापस नया हम लोग क्या सीखेंगे। और तो मेरे प्रोफेसर, मेरे डायरेक्टर ने जो कोर्स मुझे रेकमेंड किया था, तो उसके हिसाब से उन्होंने स्टडी प्लान बनाया था। तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर से बताया था कि ये सब्जेक्ट लो, आप इसमें कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मैंने सीखा, मतलब जो मैं मतलब मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं सीखा, मैं यहाँ पे उससे 2 गुना ज़्यादा सीखा मैंने। तो मतलब ये एक्सपीरियंस तो है कि हमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिलता है, जो हम लोग को मतलब हम लोग जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपने इंजीनियरिंग में, और जब कहीं से भी हम लोग आते हो। Okay, so for that you wanted to experience that difference, right, in the culture, in the right, education and each and everything, right, and also you wanted to pursue something different of what you were doing right, back. exactly. Okay, so like तो ये जैसे like he's talking about the difference and everything, that is true. Like when you will come over here you will see lot of differences in like मैं बोलता रहता हूँ ना, जैसे कल्चर डिफरेंस है, तो कल्चर डिफरेंस के अलावा एजुकेशन सिस्टम में, पढ़ाने के तरीके में, डाउट सॉल्विंग के तरीके में, सब चीज़ों में बहुत सारे मतलब चेंजेस है जो फर्स्ट सेमेस्टर में यू एब्जॉर्ब इट एंड इन सेकेंड सेमेस्टर यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मेरे लिए ये सेमेस्टर थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का ऑनलाइन था। तो ज़्यादा पता नहीं था कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, प्रोफेसर से कैसे बात करते हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे कॉलेज खुलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो हम लोग को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे मैनेज करना है अपनी स्टडीज़। दैट्स राइट। एंड सो लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट सेमेस्टर, और लाइक उससे थोड़ा पहले जाता है, सो व्हेन यू वर लाइक फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई, यू ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, what precautions should people take, right, yeah, and how was like whole journey and वो सब कैसा था? right. मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। सबसे पहले तो मतलब टिकट मिलने से ही हम लोग का थोड़ी सा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो फाइनली जाके नवंबर में मेरा वीज़ा हुआ, दिसंबर में टिकट मिली, और मैं जनवरी 12 जनवरी को यहाँ पे आया। तो आई हैड टू डू माई कोविड नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर। तो उसके बाद हमको
एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो फॉर्म दिखाना पड़ता है, हर चीज़ पे हर स्टेप पे चेकिंग होती है। ओके। यहाँ पे लैंड होने के बाद भी हम लोग को वो फॉर्म दिखाना पड़ता है, मतलब यू हैव टू प्रूव दैट येस यू आर कोविड नेगेटिव। तो फिर यहाँ आने के बाद मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं था वहाँ के रेस्ट्रिक्शंस और यहाँ के रेस्ट्रिक्शंस में। बस अपने प्रोसीजर फॉलो करो, मास्क पहनो, कहीं भी जाओ सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो मतलब यहाँ पे आने से पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब एक टाइम सिचुएशन ऐसा था कि मतलब शिट मैं फर्स्ट सेमेस्टर अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी बंद थे, वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली नवंबर में जाके मिले और फिर उसके बाद प्रोसीजर धीरे धीरे चालू हुआ। Okay. And so my next question is like, so as you came over here and like you had your first meeting with the advisor, right? Right. So how was the first meeting like, and how did you approach your advisor with your questions, with your doubts, and whatever things you had in your mind? Like first meeting was like totally different. Okay. My first meeting was when I was back in India. I had scheduled a meeting with my program director Michael Frank, and it was very general meet. It was a very general meeting. So we discussed about my technical background, in which course I did my engineering, and firstly he asked me my interest. Okay. In what field you want to do your masters in, और उसके हिसाब से मेरा स्टडी प्लान उन्होंने बनाया। Okay. फर्स्ट मीटिंग बहुत जनरल थी। सेकेंड मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम लोग सेकेंड मीटिंग एक रखेंगे जिसमें हम लोग आपका एक स्टडी प्लान बनाएंगे और इस हिसाब से आप अपना रेस्ट ऑफ द मास्टर्स मतलब क्रैक करोगे ऐसा। तो फिर 2 या 3 मीटिंग्स हुए मेरे जब मैं इंडिया में था। यहाँ आने के बाद पर्सनली उनसे मिला, उन्होंने खुद अप्रोच किया मुझसे कि लेट्स हैव अ वॉक, और हम लोग के कॉलेज के यहाँ पे जो रिवर है तो हम लोग ने वहाँ पे तो फिर वहाँ पे हम लोग ने आधा 1 घंटा वॉक किया। लाइक इट वाज टोटली डिफरेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर नहीं, वो मेरे दोस्त थे जिनसे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, जिनसे मैं कभी भी एडवाइस ले सकता हूँ। मतलब So it was your good experience. It was a very good experience and a totally different experience than what you gain in India. And and how was your so my next question is like, how did you adapt the teaching the teaching behavior over here, मतलब इंडिया से तो पूरा डिफरेंट होता है, right? So as you attended your first lecture, what was going in your brain, दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे मैंने पहले बोला कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत थे। तो एक तो ऑनलाइन सेमेस्टर था पूरा, तो मैंने मेरे इंजीनियरिंग में भी ऑनलाइन सेमेस्टर ख़त्म किया। जैसे आया तो टीचिंग में मतलब सेशंस लेने में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन जो सिखा रहे थे उसमें बहुत फ़र्क था। मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे एलैबोरेट करते हैं और कैसे एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और भले हम लोग ऑनलाइन भी जूम मीटिंग में क्यों ना हो, वो हर एक मिनट पे पूछते हैं कि मतलब आपका डाउट क्लियर हुआ, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो मतलब ऐसे ध्यान देते हैं कि सब ये स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में आए, और ऐसा ना हो कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया हो फिर बाद में जाके उसको कोई प्रॉब्लम आया हो। तो मतलब हर एक स्टूडेंट को कंसिडर करके उनको ध्यान दे के मतलब ये कोशिश रहती है उनकी कि उनको ये कंसेप्ट समझ में आए। और 1-2 चीज़ें आती है समझ में कि मतलब इन लोग का बोलने का एक्सेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हम लोग को एक दिमाग में चीज़ रहती है कि हम लोग को ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट समझ में आता है। वो धीरे धीरे हम लोग को जैसे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं and both sides are lectures better, so then you get to basically understand each and everything. Right. So it's all about the basically the nature of acceptance, कि आप इस कंट्री को एक्सेप्ट जब आप एयरपोर्ट से घुसते हो तब से आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो भी आप चेंजेस देखते हो, जैसे भी लोग आपसे बात करते हैं, यू हैव टू एब्जॉर्ब दोज थिंग्स कि ठीक है इसने मेरे से रूडली बात किया तो मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है, एंड नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू। इसने मुझे इससे मैंने अच्छे से बात किया, इसने मेरे से अच्छे से नेटवर्क किया। सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट दैट हैपेंड कि मतलब उसकी वजह से दैट पर्सन कनेक्टेड। सो बेसिकली यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एक्शंस दैट यू डू। यहाँ पे एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि, सो यू हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। एंड ऑल्सो टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड back in India, and how did it help you with the
master's So education? basically, I am from Mumbai. I completed my bachelor's in information technology from NMIMS University. Also, my MBA in business analytics from NMIMS itself. So मतलब पहले मेरा ये फोकस नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करना है. लेकिन जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर हम लोग जाते हैं, हम लोग को थोड़ी एक समझ आने लगती है कि और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम लोग ने क्रैक किया तो हमारी लाइफ कुछ और ही बन सकती है. Yes. तो हम लोग को मतलब ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम में वो कैपेसिटी है तो हम लोग क्यों ना एक्सप्लोर करें वो. Definitely. तो फिर मैंने ये सोचा, मतलब मैं इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था जब मैंने ये सोचा कि यस मुझे करना है. उस हिसाब से मैंने मेरे प्रिपरेशन वगैरह सब चालू किया है, GRE, TOEFL, and then I decided yes I want to crack it and I want to pursue masters. So how, like, what was your parents' mindset? How were you feeling at that point of time, you know, as you were leaving your family back in the time of pandemic? It was completely emotional. Like my parents were emotional. My grandmother, my you know, everyone was emotional. Like ये पहली बार था जब मैं मतलब कोई हम लोग के फैमिली से कोई एक बंदा यहाँ पे मतलब इतनी दूर ट्रैवल करके आने वाला है और अकेला रहने वाला है. बहुत लोगों की फैमिली में कोई फर्स्ट टाइम ही निकल रहा है मास्टर्स US. मतलब मोस्टली मेरे को पता है इंडिया में जितनी फैमिलीज हैं उसमें से कोई अगर मास्टर्स करने जाता है तो वो पहला या मुश्किल से अगर कि उसकी कोई बड़ी बहन है या कुछ है एंड उनको 3-4 साल हो चुके हैं वहाँ पे तो पेरेंट्स भेजते हैं मास्टर्स करने के लिए, वरना कोई फर्स्ट टाइम ही जाता है. इट्स अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि एंड मैं भी अपनी मॉम से बहुत अटैच्ड हूँ. सो व्हेन आई वाज लीविंग माय कंट्री एंड उस टाइम पे तो पैंडेमिक नहीं था एंड लाइक ऑब्वियसली मिहिर केम सो इट वाज लाइक यू नो हार्ड फॉर पैंडेमिक. या एंड बहुत सारे रिलेटिव से मिल भी नहीं पाए होंगे, फ्रेंड से भी नहीं मिल पाए होंगे, सबकी फ़ोन पे बातें हुई. लेकिन कभी ऐसा होता है कि इतने सारे इमोशनल बॉन्ड के बीच में किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ता है. तो वो मतलब मेरे डैड ने लिया. वो भी इमोशनल थे, बहुत इमोशनल थे. लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार डिसाइड किया है, जाना है, करना है, तो ऐसा कुछ करके देखा कि हम वहाँ पे आ सके. तो ये एक मोटिवेशन मिलता है हम लोग को कि मतलब अगर कभी हम लोग इमोशनल हुए यहाँ के, कभी कभी ऐसा होता है कि एक होमसिक हम लोग फील करते कभी कभी, तो बस ये चीज़ ख्याल में रखना है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, हम लोग को करना क्या है और हम लोग यहाँ से क्या लेके जाना है. That's true. तो मतलब and that's why like you became stronger day by day, right. So तो मतलब याद तो रोज़ आती है, अभी भी आती है, लेकिन हम लोग एक बार डिसाइड किया कि हम लोग को क्या करना है तो मतलब वो हम लोग को एक आदत हो जाती है. That's great. And वही सुबह शाम मॉम डैड से बात होती होगी. मतलब मेरी तो सुबह बात होती है, उनके सुबह मेरी रात को उनके सुबह. तो वैसे हम लोग की हर दिन बात चलती रहती है. तो मतलब and that is you know this lovely thing about our culture that we are so attached to our parents and अपने friends family and यहाँ के लोग वो कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. यू नो ट्रस्ट मी, लाइक यू नो why people are like you know lonely over here or they feel depressed because they have no one, like they do have like you know money, success, each and everything, but back in India आप कहीं पे भी जाओगे सबके मतलब कोई भी जगह पे आप जाओगे सबका ग्रुप होगा. यू नो बी इट ओल्ड सिटीजन, बी इट मिडिल एज पीपल, सब लोग शाम को बैठे हैं बाहर बैठ के बात कर रहे हैं. अच्छा मौसम हो रहा है तो यू नो पीपल आर ईटिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर. एंड व्हेन वी कम फ्रॉम दैट कल्चर, सो वो मैं कल्चरल डिफरेंस बोलता हूँ. यहाँ पे आपको फील होता है अभी जैसे एज यू नो लाइक यू नो अभी तू घर जाएगा सो यू विल सी दैट यू नो आफ्टर 7 o'clock there is no one on the street. And at that time you feel that you know right. मतलब यहाँ पे मैंने बहुत नोटिस किया है कि यस मतलब जैसे इन्होंने बताया कि 7 बजे के बाद कोई हम लोग को दिखता ही नहीं है रोड पे. हम लोग को ऐसा लगता है कि and that too we are staying in New Jersey. Yes, right. Yeah. So that is one thing कि मैं इसलिए जो लोग यू नो यूनिवर्सिटीज़ मुझे थोड़े काउंटी साइड में बोलते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ that it is going to be a you know major change क्योंकि आप बॉम्बे से आ रहे हो, you have seen lot of people out there on the streets and stuff like that, and when you go to the county side कोई नहीं, मतलब ठंडी हो रही होगी उस साइड तो 3-4 बजे के बाद आपको कोई नहीं दिखेगा. So that is one thing. तो मतलब ये मेरे हिसाब से कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू नो यू शुड ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ योर सीनियर्स. तो मतलब हम लोग यहाँ इंडिया से निकलने से पहले हम लोग क्या तैयारी करते हैं, हम लोग किसके वीडियोस देखते हैं, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग को कुछ डाउट्स है तो हम लोग कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो यहाँ पे आके जिन्होंने अपना
मास्टर्स या कुछ भी PhD मास्टर्स जो भी कंप्लीट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल हो गए, तो उन्होंने अपनी जर्नी कैसे की, तो वो हम लोग को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हम लोग को यहाँ आके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड लाइक फ्रॉम माई वीडियो एंड लाइक जो मुझे भी अप्रोच करते हैं, मीर ने भी आई एम श्योर किया था पहले जब, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जो कंसल्टेंट जो लोग लेते हैं, सो जस्ट डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट देम बिकॉज इट्स देयर बिजनेस. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट टू सेंड यू बिकॉज दे आर गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम दैट. एंड यू नो, लाइक हम लोग यहाँ पे, तो मुझे अभी लाइक मीर से बात करके मैं मीर से कुछ चार्ज नहीं ले रहा हूँ, या मीर को कुछ सजेशन चाहिए था तो मैंने मीर से कोई चार्ज नहीं लिया है. I used to, you know, help him out directly ऐसे ही कि like, you know, he used to approach me on Instagram or LinkedIn. I used to just answer his doubts in 2 to 3 lines, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी I used to help him on the call or something like this. So that is one thing कि अगर आप कंसल्टेंट ज्वाइन किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको उस टाइम पे अनश्योरिटी है कि आपको जाना नहीं है मास्टर्स के लिए, आपके दिमाग में अभी भी सेकेंड थाट्स हैं, सो जस्ट डोंट गो विथ देयर टॉकिंग और देयर यू नो शेयर ऑफ थाट्स, बिकॉज उन्हें सिर्फ भेजना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू अर्न मनी फ्रॉम दैट एंड इट्स योर हार्ड एंड मनी. एंड आपके फैमिली, मॉम डैड, सबके इमोशनल अटैचमेंट बहुत कुछ होता है दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड यू हैव टू गो थ्रू व्हेन यू आर ओवर हियर. एंड लास्टली, सो माय लास्ट क्वेश्चन, so what are your plans in the future and how are you going to apply for your internships or like full time? What are your thoughts about that? Like as I said, I'm always going to take advice of my seniors, of my program director, like how to proceed with the end of every semester, as this is as I completed my first semester here, so I will be moving on to the second semester. So यहाँ पे रूल ऐसा है कि 2 सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद या फिर 9 मंथ्स ख़त्म होने के बाद आप अपने CPT मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी तैयारी हमें सेकेंड सेमेस्टर के बीच में से ही शुरू करनी होती है. तो अभी मेरा प्लान ऐसा है कि सेकेंड सेमेस्टर के बीच से CPT के लिए हम लोग अप्लाई करना चालू करूँगा, जिसके लिए मुझे पहले मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर से बात करनी होगी. वो लोग जैसे एडवाइस करेंगे या फिर मेरे भी कुछ थॉट्स हैं उनके साथ मैं शेयर करूँगा, फिर ऐसे ही मूव ऑन करके basically you will reach out to yes people. right, yeah, it is important to reach out. like जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और फिर आपका मतलब आपका प्लान क्या है. और जैसे आप कम्युनिकेट करते हो उस हिसाब से आपका एक फोकस बनता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये वक्त पे करनी है, तो फिर आपको एक वो उसका सीरियसनेस समझ में आता है. that's right. एक बार क्योंकि मतलब गाड़ी छूट गई तो मतलब वापस पकड़ना मुश्किल हो जाता है. That's right. And so it was nice talking to you, Mir, and thank you so much for coming on the channel. Thank you. And I hope मेरे videos ने like you know Yes. they help you out. Always, And as always. and I hope to help you guys in the future as well through this channel and obviously through my personal reference as well. Like stay tuned to this channel and thank you so much for watching this video. I hope you liked it. Please share, subscribe and like my videos, and I'll see you all next time.